Hello, ninth standard. Let us continue with our civics lesson number 8. I already uploaded 3 videos related to lesson number 8 in which I have gone through about constitution means, importance, process of framing the constitution, what is preamble, importance of preamble, pillars of preambles, right? Democracy, socialistic and secularism. See, if you don't have textbook, then also no need to worry about. Please, you can understand the topics, you can see the text clearly in your videos, and if not, then to at least you can hear me clearly. So concentrate on my reading and concentrate on my explanation. It will be easy for you to understand the topics. Okay everyone, let us continue with our next topic of this lesson. Basic features of constitution. That is we can tell बेसिक जो फीचर्स हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह का है, रिटन डॉक्यूमेंट है, ओरल डॉक्यूमेंट है, राइट, उसके बारे में बात करना. सो द कॉन्स्टिट्यूशन विच कम्स इन फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950 इज़ कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट एक्सटेंसिव एंड डिटेल्ड रिटन डॉक्यूमेंट. गिवन बिलो आर द बेसिक एंड साइलेंट फीचर्स ऑफ इट. सो कॉन्स्टिट्यूशन जो 26 जनवरी 1950 को डिक्लेयर हुआ था वो बहुत ही बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत ही डिटेल में लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है. रिटन डॉक्यूमेंट. एक्सेप्ट ब्रिटेन एंड इसराइल, इंडिया अलॉन्ग विद अदर नेशंस of the world have their constitution in written form. Considering the social geographical diversified circumstances and prehistorical notions, the Constituent Assembly has kept the drafted constitution in written form. So here one important information is given, that is constitution ब्रिटेन का और इसराइल का रिटन में नहीं है. बाकी और जो भी कंट्रीज़ में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है वो सब रिटन ही है, अलॉन्ग विद इंडिया. इंडिया का भी कॉन्स्टिट्यूशन है जो रिटन में ही बनाया गया है, इन विच कई सारे सर्कमस्टेंसेस इंक्लूडेड हैं, लाइक सोशल और जोग्राफिकल, अलग अलग हिस्टोरिकल नेशन के अलग अलग टॉपिक्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में कवर किए गए हैं बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ओके, नेक्स्ट इज़ size of the constitution. Indian constitution is divided into 22 section comprising 395 articles and 8 appendices. Now 12, that is now there are 12 appendices. पहले 395 articles और 8 appendices थे. The constitution comprises provisions for state administration and state interrelation, fundamental rights, principles for political policies, judiciary, election commission, government institution, minorities, scheduled caste and deprived groups. So constitution जो है वो सभी के topics उसमें included हैं. Either you talk about state administration or you talk about state to with another state relation, or you talk about fundamental rights, principal political policies, judiciary, election commission, government institution, minority classes, scheduled caste, scheduled tribe. ओके, तो हर एक लोगों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन इक्वली काम करता है. देन फर्दर, therefore the constitution of India is the larger extensive and डिटेल्ड रिटन डॉक्यूमेंट कंपेयर टू अदर कॉन्स्टिट्यूशन. सो इसी की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक लार्जर एक्सटेंसिव और डिटेल्ड रिटन डॉक्यूमेंट है दूसरे किसी भी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को कंपेयर करते हुए. नेक्स्ट इज सिंगल सिटीजनशिप. नाउ इफ आई टॉक अबाउट सिंगल सिटीजनशिप, इन अमेरिका डुअल सिटीजनशिप इज़ गिवन, one for United States of America and another for state citizenship. तो अमेरिका में डुअल सिटीज़नशिप दी जाती है. डुअल सिटीज़नशिप मतलब एक तो आप अमेरिका के सिटीज़न हो उसका, और दूसरा अमेरिका में किस जगह पे रहते हो उसका भी सिटीज़नशिप दी जाती है. ओके, But in India there is only one single citizenship irrespective of any region or state of the country.
इंडिया में एक ही सिटीजनशिप दी जाती है, नो मैटर इन विच स्टेट यू लिव इन, आइदर यू लिव इन गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, वेरेवर, लेकिन कहीं भी रहो एक ही सिटीजनशिप कार्ड आपका काम आएगा इंडिया में। ओके, देन ओनली सिटीजन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैव डुअल सिटीजनशिप, वन फॉर इंडिया एंड अनदर फॉर द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो इंडिया में किसी और स्टेट में नहीं, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर के जो लोग हैं उनके लिए 2 सिटीजनशिप लेना इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ वन फॉर इंडिया दैट दे आर बिलोंग टू इंडिया एंड अनदर फॉर जम्मू एंड कश्मीर दैट दे बिलोंग टू कश्मीर साइड। ओके, नेक्स्ट इज द सेंटर विद स्ट्रॉन्ग फेडरल स्ट्रक्चर, दैट इज़ गवर्नमेंट स्ट्रक्चर जो है वो बहुत स्ट्रांगली काम करता है, आइदर यू टॉक अबाउट सेंट्रल गवर्नमेंट और यू टॉक अबाउट स्टेट गवर्नमेंट। ओके, इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, इंडिया में बहुत सारी स्टेट्स हैं, देयर इज़ नो वेयर एनी रेफरेंसेस ऑफ द वर्ड फेडरल इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सो यूनियन ऑफ स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल वर्ड पहले एडेड नहीं था। ओके, यूनियन ऑफ स्टेट इज़ द सेंटेंस यूज्ड फॉर इंडिया, फेडरल नहीं, लेकिन फेडरल की जगह ये वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में यूज़ किया गया था, दैट इज़ यूनियन ऑफ स्टेट्स। बाय द यूज़ ऑफ वर्ड यूनियन अ परमानेंट एंड irreversible relationship between union and its component states is indicated. So union मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट्स गवर्नमेंट के बीच में जो रिलेशन है, लाइक दे बोथ कोऑर्डिनेटिंगली वर्किंग फॉर डेवलपमेंट ऑफ पीपल, राइट। इंडिया इज़ यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड नो स्टेट हैज़ राइट टू सक्सीड इट। इंडिया कंबाइनली सभी स्टेट्स काम करते हैं, कोई भी स्टेट मतलब उस लॉ के अगेंस्ट नहीं जा सकते। दस इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट येट इट हैज़ सम एलिमेंट्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। सो इंडिया जो है वो यूनियन स्टेट है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, लेकिन कुछ एलिमेंट्स हैं फेडरल गवर्नमेंट के। इन इंडियन फेडरेशन देर आर 2 सेट्स ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, I told earlier also that there are 2 sets of government, union government and state government. Union government we can consider central government जो पूरी कंट्री के लिए काम करती है, state government जो one particular state के लिए काम करता है। Okay? The constitution has clearly marked area of functioning for both the kinds of government. Constitution ने दोनों गवर्नमेंट्स किस तरह से काम करेंगे उसके बारे में भी मेंशन किया गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन demarcates द पावर ऑफ सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट into different list of subject. Now this is very important topic which I am going to do now. Okay, तो किस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट और किस तरह से स्टेट गवर्नमेंट काम करेगा, वो उसके लिए पूरे सिस्टम को 3 अलग अलग लिस्ट में डिवाइड किया गया है। लाइक फॉर एग्जांपल यूनियन लिस्ट कंप्राइजेस 97 सब्जेक्ट्स। यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट्स हैं। सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस लाइक डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, एटॉमिक एनर्जी, बैंकिंग, रेलवे, कम्युनिकेशन, पोस्ट एंड टेलीग्राफ आर इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर रेलवे। नाउ अगर हम रेलवे की बात करें तो रेलवे ऑल ओवर इंडिया में स्प्रेडेड है, राइट, तो एक्सपेंडेड है। तो रेलवे जो है वो स्टेट वाइज उसका कोई डिसीजन नहीं ले सकता, क्योंकि वो जो है वो पूरे इंडिया में कनेक्टेड है। अंडरस्टूड। सो रेलवे का जो भी डिसीजन मेकिंग सिस्टम है दैट इज़ ओनली एंड ओनली विद सेंट्रल गवर्नमेंट। अब रेलवे कहीं पर रेलवे की कंस्ट्रक्शन करनी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट गिव्स प्रोजेक्ट रिलेटेड टू रेलवे। ओके, स्टेट गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। सिमिलरली बैंकिंग दैट इज़ RBI सिस्टम जो है वो किसी भी स्टेट को लिंक नहीं करता, वो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कनेक्टेड है। अंडरस्टूड।
कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी स्टेट जो है वो आरबीआई को डिसीजन नहीं दे सकता. ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट कैन वर्क विद आरबीआई. Understood. Similarly, if I talk about atomic energy, that is, if I talk about weapons and guns, etc., which are being used on borders along with military force and all, तो जो भी वो वेपन्स यूज़ करते हैं वो वेपन्स भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास उनका मतलब पूरी डिटेल होती है कि किस स्टेट में कितनी मिलिट्री होगी और कितनी मिलिट्री के पास कितने वेपन्स होंगे. अंडरस्टूड. सो वेपन्स को लेकर, मिलिट्री को लेकर, हेयर डिफेंस वर्ड इज़ इंक्लूडेड. डिफेंस मतलब बचाव दल. बचाव मतलब ऑब्वियसली आर्मी ओनली विल कम इन दिस. ओके. तो कितनी आर्मी कहाँ पर प्रोटेक्शन करेगी ऑन बॉर्डर ऑफ इंडिया, आइदर इन द स्टेट, वट एवर जो भी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसको कंट्रोल करेगा. एंड फॉरेन अफेयर्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या होगा, क्या नहीं होगा, कहाँ पर होगा. लाइक इंडिया इज़ हैविंग मच कोस्टल रीजन. पूरे साउथ इंडिया में वन साइड अरेबियन सी और दूसरी साइड बे ऑफ बंगाल है, राइट. तो बाय शिप कोई भी गुड्स इंडिया में आते हैं, सेलेक्ट सपोज वो बॉम्बे पोर्ट पर भी अगर वो गुड्स आते हैं तो इट डजेंट मीन कि दैट गुड्स बिलोंग्स टू बॉम्बे पर स्पेसिफिकली. नो, दैट गुड्स कैन गो डायरेक्टली टू सेंट्रल गवर्नमेंट. उनका रिकॉर्ड होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, एंड देन सेंट्रल गवर्नमेंट डिवाइड दैट गुड्स इन डिफरेंट स्टेट्स. अंडरस्टूड. सो दैट इज़ यूनियन लिस्ट. ओके. नाउ सेकेंड इज स्टेट लिस्ट. See, union list is related to central government. That is, we can tell prime minister and governor and president, right? वो लोग सब in union list में काम करते हैं, cabinet ministers and all. Now, if I talk about state list, तो state list में 66 subjects हैं, and state list मतलब it is working under chief minister. CM, राइट. 27 स्टेट्स हैं और जम्मू एंड कश्मीर इंक्लूडेड विद यूनियन टेरिटरीज एंड ऑल, राइट. हर एक स्टेट का अपना अपना अलग अलग गवर्नमेंट है. तो अपनी स्टेट को प्रोग्रेस करने के लिए जब स्टेट गवर्नमेंट काम करता है तो दैट दे कैन वर्क ऑन 66 सब्जेक्ट इंडिपेंडेंटली. अंडरस्टूड. अब सेलेक्ट सपोज गुजरात में रेलवे भी है, लेकिन वो रेलवे यूनियन दैट इज़ सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करता है. और अनदर इफ़ आई टॉक अबाउट के गुजरात में बस स्टॉप्स भी हैं, तो बस स्टॉप ऑब्वियसली दैट कैन बी कंट्रोल्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट. अंडरस्टूड. दैट देर इज़ नो नीड टू बी कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके. लेट अस रीड फर्दर. द स्टेट लिस्ट comprises 66 subjects. The state list comprises of those important subjects on which the state legislative house can plan laws. Legislative house, legislature house मतलब those people which are officially working on paper. Understood. You know there are 3 types, that is, one is legislative, one is executive and one is judiciary. Legislative जो प्लान वगैरह बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव जो प्लान्स को इम्प्लीमेंट करते हैं, प्लान्स को फाइनली मतलब शुरू करते हैं, उनके ऊपर काम करना. और जुडिशियरी जो है वो इन दोनों का काम सुपरवाइज करते हैं कि वेदर एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट इज़ वर्किंग नाइसली और नो, और वेदर लेजिस्लेचर डिपार्टमेंट हैज़ डन प्लानिंग इन वेरी वेल प्लान्ड और नो. ओके. सो लेजिस्लेचर it passes laws. Okay. Subjects like law or order, state government institution, agriculture and irrigation, health, land, interstate trade and commerce are included. So that is state के अंदर अंदर आपको कोई भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ है, इरिगेशन है, हेल्थ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह ओपन करने हैं, या फिर प्रॉपर्टी डीलिंग है, या फिर इंस्टीट्यूशंस वगैरह ओपन किए जा रहे हैं. all decisions are taken by state list, that is all decisions are taken by state government. Okay. Then commerce here means business. Understood. Now
ये भी बिजनेस हो सकता है. दैट इज़ इंटरनेशनली फॉरेन अफेयर्स आर कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, बट इंटर स्टेट ट्रेड, दैट इज़ गुजरात में अगर वीट की प्रोडक्शन बहुत है तो वीट महाराष्ट्र में कितनी सप्लाई होगी, तो वो गुजरात की गवर्नमेंट उसका डिसीजन ले सकती है अलॉन्ग विद गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र. दैट इज़ इंटर स्टेट ट्रेड, दैट इज़ एक स्टेट से दूसरी जगह स्टेट का बिजनेस. अंडरस्टूड. इफ़ देयर इज़ अ फेलियर ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट, द यूनियन लिस्ट कैन कंसेंट और अगेंस्ट द विल ऑफ द स्टेट कैन सेंड रिजर्व पुलिस फोर्स. अगर स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट लिस्ट के अकॉर्डिंग काम नहीं होता तो कहीं ना कहीं यूनियन लिस्ट, दैट इज़ सेंट्रल गवर्नमेंट है, विच विल टेक इट्स ओन स्टेप्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट हैव टू फॉलो दैट. ओके. कई बार इमरजेंसी आ जाता है कि स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकता, तो वहाँ पर फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑब्वियसली उनकी हेल्प करते हैं. ओके. नेक्स्ट इज कॉन्करेंट लिस्ट. In addition to this, the Constitution provides the third list is called concurrent list. See, एक हो गया यूनियन लिस्ट, एक हो गया स्टेट लिस्ट. अब कॉन्करेंट लिस्ट मतलब इसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों एक साथ काम करते हैं फॉर पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स. दैट दोज थिंग्स आर इंक्लूडेड इन कॉन्करेंट लिस्ट. अंडरस्टूड. Which is consist of subject commonly concerned by both to the center and the state government. The state and the central and the state government can pass laws on these subjects. The concurrent list have 47 subjects. This list includes subjects like criminal and civil procedure, marriage and divorce, education, economic planning, union, trade union, etc. तो सिविल प्रोसीजर, किस तरह की सोसाइटी है, सोसाइटी के रिलेटेड अगर लॉज बनाने हैं, मैरिज और डाइवोर्स का कोई सिस्टम रखना है, तो उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर काम कर सकते हैं. सो दैट काइंड ऑफ थिंग्स, ऑलमोस्ट 47 सब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड इन कॉन्करेंट लिस्ट. ओके. इन यूनियन लिस्ट 97 सब्जेक्ट्स आर देयर, इन स्टेट लिस्ट 66 सब्जेक्ट्स आर देयर, and in concurrent list 47 subjects are there. Understood. Union list is included for central government, state list is included for states government, concurrent list is included for both the governments working together. Understood. Please go through this much. I will stop here only for this video. Basic features of constitution and these three lists. Okay. I repeat once again, this is my 4th video related to lesson number 8 of civics. So see that you don't miss any one video related to this lesson. Whole this lesson is very important. Take care and study well, everyone.